Strategic human resource management. What is strategic human resource management? What exactly it means? What are the functions? What are the approaches? And so on. Before moving to that, let's understand evolution. That how we have reached this strategic human resource management and why we are now considering, or why it is important for an human resource management department or human resources to understand this strategic human resource management. So, if we go long back during the industrial era, there was a term called as personal management, which was considered to be similar, or it was something which was responsible for managing the human resources in the industry. But the characteristic of this personal management earlier was only administrative in nature. Now, what is administrative? I will explain you. Then we moved from personal management, we evolved to human resource management, which became more of humanitarian, more of something which focused on understanding the humans. Then now we have moved to, or we are focusing more broadly on strategies, becoming strategic human resource management. Is this clear? The era, how we have evolved from personal management, now we are we were at human resource management, and now focusing on strategic human resource management. Now, personal management, personal, basically it has to be pronounced as personal. Personal management was administrative in nature. Means what? During this era, training and development was there, salary administration was there, attendance administration was there, and that's it. So, moreover, the purpose of personal management here was to recruit the people, train them, give them the salary, mark the attendance, and so on. That's it. That is administrate, making that these resources are available on time and they are getting proper training and development for the required job. But over the time, when organizational behavior, understanding the organizational behavior or understanding the human behavior with the experiment conducted first by at New Lanark, then your Elton Mayo's experiment, elimination human relation experiments. With these experiments and with the study of organizational behavior, means understanding the behavior of the human resources, we became human resource management. Now, human resource management's focus was not only getting this thing done, not only providing the training and development, not only making sure the resources are available, but also having the proper communication, giving them training and development as per the need, assessment of the individual. Every individual have got different skills, every individual having different motivation level, every individual having different personalities, every individual have got different perception. So human resource management focused on understanding this behavioral thing and then managing the human resources in such a way to get the best, make the best out of this. Then now, strategic human resource management. First of all, what do you mean by strategy? Strategy is something which is considered to be a long term goals of the organization. Long term goals means right now, if I am certain position here, strategy means I want to reach certain position and how I will be, what I want to be, that is framing the strategy. So what I said, how I will be reaching and what I want to be. Strategy actually defines that what you are and how you are going to reach what you want to be. So strategy consists of vision,
Mission means where I want to be and how I'm going to reach it. So strategies are long-term goals which the organization wants to achieve. Okay. Now strategic human resource. Before strategic human resource management, let's understand what is strategic management. Strategic management means management has got different processes like planning, organizing, staffing, coordinating, controlling, and so on. When management or the manager align these functions or the policies or the practices or the structure of the organization in such a way that it aligns with the organizational goals. This creation of alignment is called as strategic management. Means I want to be at the top in the market. How I'm going to do that? By carrying out proper practices, by restructuring the organization. सो व्हेन यू आर अलाइनिंग, आप जो भी एक्टिविटीज करोगे, आप जो भी प्रोसेसेस करोगे, वो रैंडमली एक्टिविटीज नहीं होंगी, वो कोई भी रैंडम वे में नहीं करोगे. आप उन्हीं एक्टिविटीज को, उन्हीं लोगों को हायरिंग करोगे, उन्हीं की हायरिंग करोगे ताकि वो आपको डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे. सो व्हेन यू आर अलाइनिंग this processes, practices, policies of the organization in such a way that they achieve the organizational goal, that is called as strategic human resource, strategic management. Now, what is strategic human resource management? Simple. Managing the human resource activities like training and development, performance appraisal, recruitment, selection, everything, every process of training, a process of human resources in such a way that it helps to achieve the strategic goals or organizational goals of the organizations. That is called as the strategic human resource management. सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर? क्या मतलब होता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? स्ट्रैटेजी क्या है? इवोल्यूशन कैसे हुआ? इज दिस क्लियर? चलो, लेट मी नो. डन? कीप ऑन रिप्लाइंग मी सो दैट आई वुड गेट टू नो यू आर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स. ठीक है. नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट द थियोरेटिकल पार्ट, जो बुक से हमको पढ़ना है. The concept of the strategy. What is strategy? I've already explained you. It is what? It is a determination of basic long-term goals and objectives of an enterprise and the adaptation of course of action and the allocation of resources necessary to carrying out these goals. आया समझ में? क्या है कि पहले तो डिटरमाइन करना कि मेरे को कहां जाना है. व्हाट शुड बी माय गोल्स, व्हाट शुड बी माय ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल्स. वंस आई हैव डिसाइडेड माय गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, then understanding what should be my course of actions, what should be my plans in order to achieve these goals. For achieving these goals, for doing certain plans, how I would be making the resources available, what are the resources required, this all together is called as the strategy. Simply, strategy also can be called as a course of action the company can pursue to achieve its strategic aims. Strategic aims is something. Now, strategic aims, why this term here is, why these strategies are created, why the focus is on strategic strategy, why we are studying strategic management, or why do we study strategic human resource management. Understand, there is a concept, there is a term called as competitive advantage. What is this now? Now understand this. There are two companies, A and B. A company has got certain goals, B company has got certain goals. Let's say A is also an online education, B is also an online education. A wants to be top in the market, B also wants to be top into the market. A is not following any kind of strategy, or it is not having any kind of strategic aims.
It's just running and running behind the aim that I want to be top in the market. Whereas B company does everything strategically, means it is an online education platform. It wants to be top in the market. So how I can gain this top position? By hiring only the top educators or top people with those very highly those who are having high skills of teaching skills, who are having high, who are at the toppest level of education level, hiring them. So they are hiring the best in the market to become best in the market. So everything right from their hiring. So tell me, who would have the competitive advantage? This B would have the competitive advantage because other won't able to stand up their competition. बाकी जो कंपनीज कंपटीशन में हैं उनके हिसाब से बी वालों को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हैं, वो वही चीज पे फोकस कर रहे हैं जो उनको अचीव करना है, ना ही कि रैंडमली किसी को भी किसी भी एडुकेटर को हायर कर रहे हैं। This is what it is called as strategic aims. So strategic aims here means gaining that competitive advantage. Now, what are the strategic plans? So companies plan for how it will match its internal strength and weakness with external opportunities and threats in order to maintain competitive advantage. You have to understand कि competitive advantage का मतलब क्या है. So मैं अगर मेरे क्लास में मेरे जैसे ही होशियार 4-5 बच्चे हैं तो मुझे ऐसा क्या करना होगा या मुझ में ऐसे कौन सी क्वालिटीज या स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा कि उन 4-5 बच्चों की कंपटीशन में मुझे एडवांटेज मिलना चाहिए. तो शायद मेरी हार्डवर्क, शायद मैं उनसे ज्यादा पढ़ाई करूंगी, एक आर एक्स्ट्रा पढ़ाई करूंगी तो मुझे ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देना यानी मेरे को मार्केट में सर्वाइवल पॉसिबल करना प्लस उस मार्केट पे होल्ड रखना. दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. और स्ट्रैटेजिक प्लान का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं. इन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल मार्केट में होने वाली अपॉर्चुनिटीज, मार्केट से आने वाले थ्रेट्स यानी कंपटीशन से उभर के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करना. So the concept of strategy is based on 3 subsidiary concepts: competitive advantage, distinctive capabilities and strategic fit. I will explain these 3 points. ये 3 points समझ में आए? Is this clear? Everyone understood? First 3 points: strategy, strategic plans and the definition. आगे चले. Now, concept of the strategy is based on the 3 basic concepts, subsidiary concepts, which you need to understand. Wherever you feel you're not understanding, you can always ask me to repeat. Now, who is being associated with the term competitive advantage? Who is the one who has formulated or given or coined the term competitive advantage is very, very important to know. So Michael Porter is the one who has formulated or has first introduced the term competitive advantage. And for this, he has also given certain generic strategies and competitive strategies in order to gain the advantage. So competitive advantage, Porter asset, arises out of a firm creating the value of the customers. तो इनके हिसाब से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? जब आप कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे. लाइक पिज्जा हट है, डोमिनोज है, बट और भी लोकल हमारे कंपनीज हैं जो पिज्जा बनाती हैं, राइट? लेकिन हम डोमिनोज, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी एग्रीइंग कि डोमिनोज का जो टेस्ट है हम उसको प्रिफर करते हैं. द रीजन इज it is adding a value to the customers. There is something different about Domino's. There is something unique about Domino's that it is making more valuable to the customer. So Porter के हिसाब से this Domino's is able to gain this competitive advantage because it is creating a value for the customers. Is that clear? What is competitive advantage and what the Porter wanted to say? समझ में आया ना
कि मेरे लिए कॉम्पिटिटिव, मैं मार्केट में तभी सरवाइव करूंगी ना कि जब कस्टमर जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको वह वैल्यूएबल लगेगा। जब तक उसकी वैल्यू नहीं होगी तो कैसे होगा, ठीक है। अब पॉटर ने एम्फसाइज किया कि ये कस्टमर्स के लिए वैल्यू कब क्रिएट होगा। अब कस्टमर्स को लिए वैल्यू क्रिएट करना यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लेकिन ये वैल्यू क्रिएट कैसे होगी। पॉटर एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटेड। आप सेम लेट्स से लेबर वेलफेयर के बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स हैं, सब वही पढ़ाते हैं। मैं क्या कुछ अलग पढ़ा रही हूँ क्या? मैं भी तो एचआर ही पढ़ा रही हूँ, मैं भी लॉस पढ़ा रही हूँ। बट ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स जो मेरे पास में आ रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वैल्यू क्रिएट हो रहा है। That is, there is something different about me. Maybe the teaching skills, maybe the validity of content, right? So this can be, I'm just not praising myself but trying to make you understand कि कुछ तो different है। बहुत सारे YouTube चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो लेबर वेलफेयर पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है लक्ष्मी के कोर्सेज में या लक्ष्मी कुशवाहा के प्रोडक्ट में जिसकी वजह से डिफरेंशिएट कर रहा है बाकियों से। सो डिफरेंशिएशन विच कंसिस्ट ऑफ ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और द सर्विस दैट इज परसीव्ड इंडस्ट्री वाइज एज बीइंग यूनिक। तो एक इंडस्ट्री में जिसमें आप डील कर रहे हो सेक्टर में, वहां पे आपका यूनिक है, डिफरेंट है। फोकस, सीइंग अ पर्टिकुलर बायर ग्रुप और अ प्रोडक्ट मार्केट, फोकस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं रैंडमली सबको नहीं बेच रही हूँ, आ जाओ पढ़ो। सो इट्स लाइक human resource management, specializing into it. My focus is specializing the human resources. So particular एक buyer group को ही concentrate करना, buyer product market को ही concentrate करना more effectively or efficiently than the competitors who are competing more broadly. तो बाकी जो competitors market में कर रहे हैं उनसे ज्यादा more खुद को differentiate करना, unique करना और खुद का फोकस उन्हीं पे रखना, that is important to create a value for the customer. और उसी के लिए पॉटर ने कंसेप्ट ऑफ जेनेरिक बिजनेस स्ट्रैटेजीज, जेनेरिक यानी जो एक जनरल बिजनेस स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन फोकस कर सकती है, ये डिफरेंशिएशन और यूनिकनेस पे ध्यान देके। पहला है कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस, हाईली इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है। अब कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन, इनका मीनिंग पूछा जाता है। व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप? whenever I am entering into the market, making sure I am having minimum cost. Cost leadership का मतलब होता है मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसमें से ऐसा कॉस्ट मेंटेन करना जो कस्टमर्स के लिए इजीली अफोर्डेबल हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन, यूनिकनेस, कॉस्ट फोकस। अब ये कॉस्ट फोकस का यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप यानी यू आर लीडिंग, कॉस्ट फोकस का मतलब है कि आपको लॉसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप उनको फ्री में मतलब मिनिमम पे दे रहे हो, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन योर कॉस्ट, बेफिजूल का खर्चा ना बढ़े। डिफरेंशिएशन फोकस, डिफरेंशिएशन टाइम के साथ में जब आप प्रोडक्ट डिफरेंट यूनिक बनाते हो, कीप इट, मेंटेन इट, ठीक है। सो दिस फोकस शुड बी देयर। तो आपको बहुत इजी है याद रखना, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस। लास्ट इसमें दोनों में फोकस है और ऊपर वाले इसमें लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। क्लियर, डन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कंसेप्ट क्लियर है सभी को? शैल वी मूव अहेड? I'm moving very slow to make you understand, ठीक है। Let's move to the next. Another point, subsidiary concept associated with the strategic management or strategy is distinctive capabilities. What is distinctive capabilities? See, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ना अपने खुद की एक स्ट्रेंथ होती है। डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज यानी मुझे बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने वाली कैपेबिलिटीज जो मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा।
ऐसी कैपेबिलिटीज जो कॉम्पिटिटिव कंपनी जो है वो उसे इमिटेट नहीं कर सकती, कॉपी नहीं कर सकती। उसको डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज इसीलिए बोलेंगे कि वो मार्केट का जो कंपटीशन है उसको सस्टेन कर पा रही है, सस्टेन करने के साथ साथ कोई और उससे इमिटेट नहीं कर पा रहा है, रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है। अगर हर कोई, मेरे पास में जो लेट्स से टीचिंग स्किल्स है, तो मेरे जैसी अगर कोई टीचिंग स्किल्स रेप्लिकेट कर लेगा, इमिटेट कर लेगा, ऑब्वियसली मेरा मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट द डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज इज, कि मेरे पास में जो कैपेबिलिटीज है वो क्या है, वो डिस्टिंक्ट है, जो लोग कॉपी नहीं कर सकते, रेप्लिकेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इस कैपेबिलिटीज में डिस्टिंक्टिव होता है, रिप्रोड्यूसिबल भी होता है। समझ में आया व्हाट इज डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज? समथिंग व्हिच इज नॉट इमिटेबल और रेप्लिकेबल बाय द कॉम्पिटिटर्स। सो डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बाय बेर्ने 1991 between the competitive advantage that firm presently enjoys but others will be able to copy, and sustained competitive advantage with competitors cannot imitate. This lead to the important concept of distinctive capabilities. बेर्ने ने दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश किया, डिफरेंशिएट किया कि कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जैसे लेके हम चलते हैं आजकल there are n number of the online platforms like Unacademy, then Byju's tha, Unacademy aaya, Topper, then you have n number of the high online education platform, जैसे पढ़ाई ऐप, हमारा ऐप भी है, ये भी इसमें आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ उनकी प्रेजेंट या फिर जो अनअकैडमी है या बायजूस है, ये सभी एक ही कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। कौन से? ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंजॉय कर रहा था बायजूस या अनअकैडमी, वो कॉपी किया गया बाकी न्यू लोगों, न्यू एंट्री इनटू द मार्केट, उनके कॉम्पिटिटर ने उसको कॉपी कर लिया। फाइन, कॉपी करना फाइन, they were able to copy, but why the Unacademy is still surviving? Why? What is the reason कि यही आगे बढ़ रहा है? Because they are able to sustain it. And how they are able to sustain it? Because the competitor, there are certain capabilities जो बाकी competitors उसे क्या नहीं कर पा रहे हैं, imitate नहीं कर पा रहे, replicate नहीं कर पा रहे। ठीक है, so there is competitive advantage and which is strongly associated with the organization, and there are some sustained competitive advantage. As K 1999 comments, opportunities of the companies to sustain competitive advantage are determined by their capabilities. K extend this definition by emphasizing that there is a difference between distinctive capabilities and reproducible capabilities. Up K, now you may have the question that who have differentiated between distinctive capabilities and reproducible capabilities. So he is K. So distinctive capabilities are those characteristics that cannot be replicated. Distinct है तो cannot be replicated or can only be imitated with the great difficulty. बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत speciality efficiency के बाद. Reproducible capabilities are those that can be brought or created by a company with reasonable management skills, diligence, financial resources. Most technical capabilities are reproducible. जो आपकी soft skills होती है ना, वो usually distinctive होती है। जो आपकी technical होती है ना, जैसे मैं MBA हूँ, मेरा नेट है, JRF नहीं है, तो JRF को qualify करना it's not big thing. I can also become JRF qualified. This is my technical capability जो reproducible है। लेकिन जो मेरी टीचिंग स्किल्स है, मेरे जो सॉफ्ट स्किल्स है, मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, these are very difficult for somebody else to replicate it. ठीक है, so this is the difference between distinctive and reproducible capabilities. Prahlad and Hamel argue competitive advantage stands a long term when built on core competencies. Now the question here, PYQ, is who has given the term of core competencies? That is Prahlad and Hamel. So Prahlad and Hamel ने कहा
कि ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगा इफ यू फोकस ऑन योर कोर कॉम्पिटेंसीज, योर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। हर एक पर्सन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज होती हैं। If you build those core competencies, you will gain the competitive advantage. This core competencies has to be superior to its rival when it learns faster, applies it to learning more effectively than the competitor. Now, according to Berne, 4 criteria whether a resource can be regarded as distinctive capability or competency. बेरने ने कहा कि 4 क्राइटेरिया की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डिस्टिंक्टिव है, कोर कॉम्पिटेंसीज है या नहीं। वो कौन सा है? फर्स्ट, इज इट क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर वैल्यू क्रिएशन फॉर कस्टमर। रेयरिटी, रेयर है कि नहीं है, सभी लोग के पास तो नहीं है ना ये, रेयर कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। नॉन इमिटेबल, कॉपी तो नहीं कर रहे, रेप्लिकेट तो नहीं कर रहे, एंड नॉन सब्स्टिट्यूबिलिटी, सब्स्टिट्यूट तो नहीं किया जा सकता। क्या मैं, मेरी जगह अगर लेट्स से मैं आज आपको बोल रही हूं मेरा एक कोर्स है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मेरी जगह कोई और टीचर आके पढ़ा देगा, वुड इट बी मेकिंग एन अपीलिंग स्टेटमेंट टू यू? नो, आप तो बोलेंगे नहीं मैम मुझे आपसे ही पढ़ना है। So substitutability, non-substitutability also creates a competitive advantage. अगर मेरी जगह ही कोई और पढ़ा लेता तो आप उनके पास नहीं चले जाते, आप उनका कोर्स नहीं ले सकते थे, ले सकते थे। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस, यहां तक एवरीवन अंडरस्टूड? चलो क्विकली रिप्लाई मी, समझ में आ रहा है? आई होप द लैंग्वेज इज नॉट टू हार्ड टू मेक यू अंडरस्टैंड, इट इज सिंपल। चलो रोहिणी, you have raised the hand, you want to talk to me? I'm going very detail, जहां पे आपको लगेगा कि मैम ज्यादा ही डिटेल हो रहा है, इतना जरूरी नहीं है, बट माय पर्पस इज जो 0 लेवल से भी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 0 लेवल पे है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, पहले कभी स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, पहले स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ी है, तभी भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, चलो let's move to the Rohini, you have raised your hand, is that you want to speak something? Are you still there in the class? ठीक है, it's okay. So I have accepted it. If you want to say something, you can say. Okay, ठीक है, I'm ending then the call. चलो, let's move to the next slide. Strategic. The third subsidiary concept is strategic fit. अब भैया ये क्या है? सी क्या होता है ना, मेरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेरे पास में है, मेरे पास में डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज भी है, बट इफ आई एम नॉट एबल टू फिट, आई एम नॉट एबल टू अलाइन दिस प्रॉपरली विथ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, विथ द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, तो इनका कोई ही मतलब नहीं है। स्ट्रैटेजिक फिट इज इंपॉर्टेंट। अब ये स्ट्रैटेजिक फिट हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। इसका मतलब क्या कि मैंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं हॉरिजॉन्टल, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स, या रादर देन जो फंक्शनल एरिया यानी एचआर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, इनके बीच में, यानी एचआर डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को हायर किया जो आईटी के लिए फ्रूटफुल हैं, आईटी ने ऐसा काम किया जो मार्केटिंग में बेस्ट होगा, सो दे आर एक्चुअली aligning the functional. तो functional alignment is horizontal, vertical. लोअर एग्जीक्यूटिव लेवल ने ऐसा काम किया कि सीनियर को काम आएगा, फिर मैनेजर को काम आएगा, फिर हायर सीईओ के काम आएगा। दिस वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल। हायरार्की में राइट अलाइनमेंट लाना, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल फिट। सो स्ट्रैटेजिक फिट का मतलब होता है
कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना चाह रहे हो, आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, आपके पास में जो डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज है, ये दोनों को मैच करना जरूरी है आपके जो रिसोर्सेस हैं, अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। आपने कहा मेरे पास मेरा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग का है, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट मार्केटिंग सेल्स पीपल है। यार वो मार्केटिंग सेल्स पीपल बेस्ट क्यों ना हो, लेकिन वो सेल करके करेंगे क्या जब आपके पास में टीचर, जो आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, वही एडुकेटर्स ही कैपेबल नहीं है, वही बेस्ट नहीं है। तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। You are online education platform, the match has to be between your educators and your content and your basic market requirement. So जब तक ये match नहीं आएगा, the things are not going to work. So what is strategic fit? The concept of strategic fit state that no maximum competitive advantage of firm no नहीं, it state that to maximize competitive advantage a firm must match its capabilities and resources to the opportunities available in the external environment. मेरे पास में let's say I am the person, I am Lakshmi, I am an individual, I am having certain communication skills, लेकिन मैं उन communication skills, मुझे पता है बहुत अच्छी communication skills हैं मेरे आसपास होने वाले लोगों से या मेरे सेम लेवल के लोगों के कंपैरिजन में बहुत हाई लेवल पे, लेकिन मैं उनको मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज है उनसे मैच ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही हैं, तो उन स्किल्स का क्या ही फायदा। लोग कहते हैं पीएचडी कर लो, लेकिन पीएचडी करने वाले भी लोग घर में बैठे हुए, या you are having those skills, you are PhD, you are holding that degree, still you are not able to utilize it. मतलब क्या, you were not able to match your capabilities with the opportunities. मार्केट में opportunities हैं, but आपने उनको utilize या match ही नहीं कर पाया. So that is the strategic fit, when you are able to match the capabilities with the opportunities. So as Hoffer and Scandal conclude, a critical aspect of top management work today involves matching organizational competencies, internal resources, skills with the opportunities and risks created by environment change in the ways that will be both effective, efficient over the time such resources will be deployed. Now, iska best example I will give you about the Unacademy. Unacademy started as an online education during the COVID. It used the best thing, internal resources, इनके पास में जो resources थे उन्होंने best use किया organization के goals को। अब जैसे ही कोविड खत्म हुआ, मार्केट जो है, क्योंकि कोविड का टाइम था, everyone was sitting at house, so everyone was using best use of this online. But schools have started now, students, they don't want to sit at home, they want to go out. They have started, an academy have started using offline thing, they have started their own offline centers. This is called as that the competencies of the organization जो है वो आने वाली अपॉर्चुनिटीज को और रिस्क को एनालाइज करके उनको यूज कर पा रही है, वो स्ट्रैटेजिक फिट कर रहे हैं, राइट। सो दीज वेर द थ्री what you can say subsidiary concept associated with the strategy. पहला था competitive advantage, distinctive capabilities, and third one is strategic fit. Now, few fundamentals of these strategies. Is this clear? ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ये बहुत बेसिक है जो मैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये पीएसयूज में भी पूछा जाता है और नेट में assertion and reason में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिप्लाई मी इफ यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है। नाउ फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या? फंडामेंटल थिंग होते हैं ना, हम बोलते हैं ना हमारी फंडामेंटल राइट्स है, मेरा अधिकार, फंडामेंटल अधिकार है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। फंडामेंटल यानी इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो बेसिक चीज है, ये तो चाहिए ही। सो वैसे ही स्ट्रैटेजी के कुछ फंडामेंटल्स हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, उनके बिना काम ही नहीं, स्ट्रैटेजी का कोई मतलब ही नहीं। सो स्ट्रैटेजी इज डिफाइनिंग इंटेंशन, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्या बताया था मैंने? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? मैं अभी किसी पोजीशन पे हूं, मुझे आगे हाई पोजीशन पे पहुंचना है,
तो मैं कैसे पहुंचूंगी और मैं क्या करके पहुंचूंगी, क्या रिसोर्सेज यूज करूंगी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक। यानी मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या अचीव करना चाह रही हूं इस चीज को प्लान करके, दैट इज द स्ट्रैटेजिक इंटेंट। दैट इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज, डिफाइनिंग इंटेंशंस एंड अचीविंग दैट स्ट्रैटेजिक फिट। क्या बनना चाहती हूं, क्या मेरा इंटेंशन है, और हाउ, कैसे करूंगी, स्ट्रैटेजिक फिट लाके करूंगी। ठीक है, सो अचीविंग स्ट्रैटेजिक फिट बाय एलोकेटिंग और मैचिंग द रिसोर्सेज टू द अपॉर्चुनिटीज, दिस इज कॉल्ड एज रिसोर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी। नाउ आप समझ रहे हैं, इसके पहले की स्लाइड में बहुत ही सिंपल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। क्या एक्सप्लेन किया था वहां पे, केवल मैंने आपको हाउ और व्हाट एक्सप्लेन किया था, देन मैंने आपको स्ट्रैटेजिक फिट का मतलब एक्सप्लेन किया। अब देख रहे हैं आप, यही वही डेफिनेशंस है, लेकिन यहाँ पे ये टर्म आ गई, स्ट्रैटेजिक फिट ये टर्म आ गई, स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये टर्म आ गया, चीज वही है, लेकिन क्या किया, इनको अब और उनकी लैंग्वेज मतलब वो एक सेंटेंस को रिप्लेस करके एक वर्ड यूज कर लिया गया। दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट बिल्डिंग। यानी अगर आपको कोई पूछता है, आपने ये डेफिनेशन बताई, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, strategy is defining the strategic intent and achieving the strategic fit in order to achieve the organizational goal। अब कोई पूछेगा क्या स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या और स्ट्रैटेजिक फिट का मतलब क्या। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या है कि स्ट्रैटेजी कहती है, स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच यू in which you try in which you decide your goals and objectives, long term goals and objective, allocate the resources and achieve the organization goal। वही चीज है, उसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमने दो टर्म को यूज किया है, एक है स्ट्रैटेजिक इंटेंट और स्ट्रैटेजिक फिट। सो सबसे पहला फंडामेंटल थिंग जो स्ट्रैटेजी का है वो है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट, कि आप क्या करना क्या चाहते हो स्ट्रैटेजी से। सो इफेक्टिव डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज डिपेंड्स अपॉन स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे बनेगी, कैसे डेवलप करोगे और कब इंप्लीमेंट करोगे, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंसीज पे डिपेंड करता है, which will include ability not only to formulate the strategic goals but also develop and implement the strategic plan through the process of strategic management and strategic planning। इसी को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं, यही तो प्रोसेस को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। क्या क्या प्रोसेस, कि मैं एक गोल को अचीव करना चाह रही हूं, उस गोल को अचीव करने के लिए मेरा एक स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, वो इंटेंट किस पे डिपेंड करता है, मेरी स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटी पे। उस कैपेबिलिटीज के लिए मैं क्या यूज करूंगी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक इंटेंट ये टर्म किसने दिया है, किसने कॉइन किया है, ये आपको पता होना चाहिए, गिवन बाय हेमेल प्रहलाद। स्ट्रैटेजिक इंटेंट रेफर्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ लीडरशिप position the organization wants to attain and establish a clear criteria how to progress towards the achievement। है ना, मेरा इंटेंशन क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, वही है आपका स्ट्रैटेजिक इंटेंट। सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट वुड बी वेरी ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ विजन, मिशन, यही मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। क्या होना चाहिए का, आपका विजन भी होना चाहिए, मिशन भी होना चाहिए, और इट कुड बी मोर स्पेसिफिकली स्पेल आउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड ओवर द लॉन्गर टर्म। ठीक है, अब विजन का मतलब क्या होता है, वेयर आई वॉन्ट टू बी। विजन यानी मैं क्या मेरा विजन, मैं आगे कहां पहुंचना चाहती हूं। मिशन क्या मतलब है, व्हाट आई एम, या फिर अभी मेरी करंट पोजीशन क्या है और मैं कैसे, हाउ आई वुड बी मूविंग, दैट इज मिशन, कैसे करूंगी वो मिशन होता है। गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है, गोल जो होते हैं मेरा अल्टीमेट एम होता है कि ये मेरा गोल है, मेरा गोल क्या है, मुझे जॉब चाहिए, क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए टीचिंग फील्ड में। उसको अचीव, उस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को मेरे छोटे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्या, पहले नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई करने से ही कुछ नहीं होगा, उसके बाद कॉलेजेस टारगेट करने पड़ेंगे,
यूनिवर्सिटीज टारगेट करने पड़ेंगे, टारगेट करने के बाद में मेरे को उनका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो नेट क्लियर करना, कॉलेज टारगेट करना, इंटरव्यू क्लियर करना, ये ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट? नॉन स्पेसिफिक। दे मे बी चेंजिंग बट गोल स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इस बार नेट, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये स्पेसिफिक नहीं है या चेंज हो सकते हैं, वो इसलिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पहली बार एग्जाम ट्राई किया और मेरा केवल नेट हुआ क्लियर। तो मैं जब नेक्स्ट, अभी भी मेरा गोल वही है कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है, मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव नेट क्वालिफाई करना नहीं होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ये वैरी हो सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन गोल को अचीव करना स्पेसिफिक होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं? दीज आर दी स्मॉल पाथ्स विच हेल्प्स टू अचीव दी अल्टीमेट गोल, ठीक है। अब एक जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट होता है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब क्या कि मुझे क्या अचीव करना है लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन को आगे कहां जाना है। सो दिस इज योर PYQ asked in exam. Strategic intent sequence has been defined by Miller and Des. क्वेश्चन आया था, अरेंज दी फॉलोइंग एज पर दी सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंटेंट। सबसे पहले आता है विजन, मिशन, फिर गोल्स, ऑब्जेक्टिव। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, अचीव आपको ऑब्जेक्टिव हेल्प करेगा गोल्स अचीव करने के लिए, गोल से आप अपना मिशन डिसाइड करेंगे, मिशन से आप अपने विजन को अचीव करेंगे। इज दिस क्लियर? एम आई मेकिंग अ